that, and a big round of applause for all of you in the audience, along with everyone, all the speakers who were here on stage and who participated in these discussions and who gave us their wonderful, wonderful insights. And I'm sure you all got a chance to interact with them. You'll get more chances to interact with them. But let's begin the keynote session before that. Before we begin though, we are deeply sorry to inform you that Raju Parudekar ji, who is one of the most well-known faces in Maharashtra and a part of Indie Journal family, could not make it to the event today because of some unavoidable circumstances. We shall miss his voice at this very important session. And now that I have mentioned it, let's start the most awaited session of the conclave, the keynote address. A big round of applause, please. Let's have some energy. Yes. We have heard a wide range of opinions since the day began, and we surely need the voice of experience to make sense of all of it. These are the veterans who have seen the media from the days of resilient newsprints to the cutting-edge multimedia revolution of today. They have seen the vast canvas of Indian media during its most important evolutionary years. I invite to the stage veteran journalist Anant Bagaidkar, who will preside this session, and one of the stalwarts. Sorry? Yes. I'm so sorry. Yeah. So we invite to the stage veteran journalist Anand Bagaidkar, who will preside the session, and one of the stalwarts of Indian media, P. Sainath. And I would request executive editor of Indie Journal, Prathamesh Patil, to come to the stage with them. P. Sainath sir is the founding editor of People's Archive of Rural India, or PARI. In the last 40 years, he has extensively written on rural India, agriculture, and public welfare, among other things. He, a former rural affairs editor of The Hindu, writer, and a journalism teacher, he is the 2007 winner of the Magsaysay Award. Anand Bagaidkar sir is a veteran journalist who has worked in Delhi for around 3 decades, covering politics, policy, socio-economic issues, and many more things. He was also the bureau chief of Sakar. He has contributed to several renowned publications like Deccan Herald, The Wire, and so on. He was also the secretary of the Media Advisory Committee to the Rajya Sabha and former PCI president. And then we have our own Prathamesh Patil, who is the executive editor of Indie Journal. He has been a founder of 3 alternative media platforms, of which latest is Indie Journal. He has worked as a reporter for Pune Mirror and Sakal Times, covering agriculture, commodities, human rights, and workers' issues. Now, without any further delay, I request Prathamesh to share his thoughts. नमस्कार. तुम्ही सगळे थांबलात. इथे खाली बसलेले आणि वरती एक जण बसलेले, त्या सगळ्यांचे आभार तुम्ही थांबल्याबद्दल. मी फक्त एक छोटंसं आभार प्रदर्शन करणार आहे. खरं तर हे आभार प्रदर्शन फॉर्मल नाही आहे, हे ग्रॅटिट्यूड आहे. बऱ्याच जणांनी, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड, हाऊ डिड यू पुल दिस ऑफ, हाऊ डिड अ टीम ऑफ 2 or 3 people, बट I have to tell you, it wasn't just a team of 2 or 3 people. I'll just call some names. Ajit Abhyankar, Prasad Zavre, Roma Makati, Sahil Kallori, Rishikesh Moge, Atiq Ahmed, Vaidehi Lavan, Wahid Sheikh. Please, stage वर या, please. Patkan, please. Please, Prasad sir. Please, Patkan. So, ही पुणे कलेक्टिव्हची टीम आहे. पुण्यातले अनेक प्रगतीशील चेहरेसुद्धा तुम्हाला दिसतील याच्यामध्ये, आणि या सगळ्या कलेक्टिव्ह एफर्टमुळे हे शक्य झालेलं आहे. कॉन्क्लेव्ह प्लीज सर, प्लीज 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 सगळ्यांनी त्यांना अप्रिशिएट करा. त्यांच्या रोमा प्राजक्ता, प्लीज प्राजक्ता, यू डिझर्व दिस, प्लीज. She's been a wonderful host. Please. Yes. And it's all thanks to you. We are really grateful for your help. Yes. Thank you, sir. Yes.
So this demonstration I did was just to explain this point, that just like this event, even the media is not about 2 or 3 people. The media is also about a lot of people behind the camera, the technicians, the cameramen, who take the risk, who carry the heavy equipment, who go on field, who are standing in rain. And the whole intent of the media conclave is to bring all these perspective. हे जे सगळे लपलेले चेहरे असतात तुमच्या माध्यमांमागचे, ते फक्त सेलिब्रिटी 2-3 चेहरे नाहीत जे म्हणजे माध्यम असतात. त्या माध्यमांचे अनेक आयाम असतात जे तुमच्या समोर आणायचा आम्ही प्रयत्न करतोय, आणि त्यासाठी आम्ही हे मीडिया कॉन्क्लेव्ह सुरू केलं. माध्यमांचे अनेक पैलू आहेत. आपण निम शहरी भागातून आलेले लोक असतील, ग्रामीण भागातून आलेले लोक असतील आणि शहरातले असतील. वी हॅव अ मिक्स्ड क्राऊड हिअर, अँड एव्हरीवन्स एक्सपिरियन्स ऑफ द मीडिया इज डिफरंट. एव्हरीवन्स अंडरस्टँडिंग ऑफ द मीडिया इज डिफरंट, अँड बिकॉज ऑफ दॅट देर इज अ लॉट ऑफ फ्रॅगमेंटेशन. खूप तुकड्या तुकड्यांमध्ये आपण माध्यमांकडे बघतो, आणि म्हणून we wanted to build a platform where we share these ideas, where we share these perspectives. हे सगळे एकमेकांशी डिस्कस करता यावं आणि आपलं काहीतरी एक व्यापक अंडरस्टँडिंग तयार व्हावं या सगळ्यामध्ये. आणि ॲज वी ऑल नो, आय एम गोइंग टू स्पीक व्हेरी ब्रीफली बिकॉज वी हॅव टू ह्यूज वेटरन्स हिअर. The whole intent is, in a world of fragments, we want to be the glue. We want to be a place where ideas are discussed, ideas come together, and something constructive is left in your heart when you and mind when you go out from here. We hope that your understanding of the media has expanded over the last 6 or 7 hours that you have sat here, and you will approach when you say media big gaya hai, media kuch nahi hai, media kuch nahi karta hai. I want to remember all these faces that you saw throughout the day, and remember they are doing the work that you expect out of media. You are just watching the wrong media if you think the media is not doing anything. So I think it's a issue of attention, not intent. Your attention deserves better. I will stop here and let the speakers take over. Yeah, thank you. Thank you, Prathamesh. That was great. I now request Anand sir to please take the podium and share his insights for the day. I thought that since I was chairing the session, I would have been the last person to speak, but it's okay. Good evening to all, and I will speak in all the languages, three languages: English, Hindi, and Marathi. First, I would like to congratulate Prathamesh and his team for organizing such a nice, informative gathering, and I'm also very happy that I can see many young faces, students of journalism, and it gives us hope, at least the generation which I belong to. Today, I have listened to many panel discussions since morning. I came a little late, but the issues raised were very much of importance, and I think beyond those issues, there are certain issues which really encompass our profession. और यहाँ मैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स में जाऊँगा हमारे प्रोफेशन के बारे में. एक तो दिल्ली में मैंने, जैसे आपको पता होगा, दिल्ली में ही मैंने मेरा करियर किया है. अब पिछले 1.5 साल से मैं पुणे में रह रहा हूँ. कुछ चीज़ें बदल रही है जर्नलिज्म में या मीडिया में. टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांस हो रही है. टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन सम वे हमारे कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रही है.
तो इसलिए कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी हमारे कंटेंट के ऊपर हावी हो रही है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। कुछ हमारे पैनल डिस्कशन में इसके ऊपर प्रकाश डाला है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के कारण या ब्रेकिंग न्यूज़ की जो कंपटीशन जो हम अभी देख रहे हैं हमारे प्रोफेशन में, तो जो मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ के कारण कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। ये सवाल जो हमारे जैसे लोग हैं, जो जिन्होंने इस प्रोफेशन में कई साल बिताए हैं, उनके मन में आता है, शायद आपके भी मन में आता होगा। दूसरी चीज़ है, मैं सिर्फ इश्यूज़ को पहले हाईलाइट करूंगा, बाद में एग्जाम्पल्स के ऊपर आऊँगा, क्योंकि एक्चुअली मेरा मानना ये है कि पत्रकारों ने भाषण नहीं देने चाहिए, उन्होंने अपना काम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी भाषण भी देना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ, जो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, और विशेष रूप से जब मैं दिल्ली में काम कर रहा था तो उसका काफ़ी हद तक हम लोगों को सामना करना पड़ रहा था। सबसे बड़ी चीज़ है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मैं कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर बोलूँगा। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जिसका संबंध फ्रीडम ऑफ प्रेस से भी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे संविधान में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कोई भी जो स्टेट की पावर होती है वो हमेशा पत्रकारों को ईजिली इन्फॉर्मेशन नहीं देती। पार्टी कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जिसको हम स्टेट की पावर कहते हैं, स्टेट पावर कभी भी बहुत आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। वो हम लोगों का एक स्किल होता है जिसके कारण हम वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ज़रा थोड़ा पानी थैंक यू। तो जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे उसका एक एडवांसमेंट हम देख रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस भी, उसको भी कंट्रोल करने की सारी कोशिशें हो रही है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमने खुद स्वयं उसका एक्सपीरियंस किया है। जो सरकार होती है, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत आसानी से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देती। जब मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष था तो एक दिन कुछ जर्नलिस्ट मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि सर, मंत्रालय में हमारी एंट्री शाम के 5 बजे के बाद बंद कर दी गई है। तो मैंने कहा ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सामने ही है, साइनाथ जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो संतरी है वो बोलता है कि नहीं, आप 5 बजे के बाद किसी को नहीं मिल सकते। जनरली जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं, वो उसके बाद ही, काम के वक्त के बाद ही जनरली मिलते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि ये 5 बजे के बाद कोई भी जर्नलिस्ट मंत्रालय में किसी भी मिनिस्ट्री में जा नहीं सकता और वहाँ किसी के साथ बात नहीं कर सकता। अब ये हुक्म, ये आदेश कहाँ से आया, किसने दिया, किसी को पता नहीं। लेकिन आप संतरी के साथ, वो जो सेंट्री होता है जो दरवाजे पर, उसके साथ आप बहस नहीं कर सकते। यू कांट हैव अ क्वारल विद दैट पर्सन बिकॉज ही इज जस्ट ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ हिज सुपीरियर्स। तो इसलिए फिर हमने जहाँ हमको पूछना था वहाँ पूछ लिया,
लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा एक्सेस रिस्टोर हुआ। लेकिन उसके बाद जब हमने कुछ थोड़ी बात तहकीकात की तो वो एक्सेस वैसे भी कम होता जा रहा था। और दूसरी सबसे गंभीर बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी में भी एक अनरिटन एक आदेश की तरह दिया गया था कि मीडिया के साथ आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो इस तरह के बंधन आज हमारे ऊपर है। हम भले संविधान दिवस मना रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारे लंबे चौड़े लेक्चर सुन रहे हैं, संसद में बहस हो रही है, लेकिन अगर आपको हम ये बताएं कि हमारी देश की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, विच इज़ द सुप्रीम बॉडी ऑफ पीपल्स विल, हमारे भारत की जो जनता है उसकी सारी इच्छा आकांक्षाओं का जो प्रतिबिंब है, जो जिस संस्था में है, जो जिसको सर्वोच्च पंचायत बोलते हैं, उस सर्वोच्च पंचायत में कोरोना के बाद पत्रकारों का जो एक्सेस है उसको पूरी तरह से उसके ऊपर मर्यादाएं लगाई है। आज संसद में कौन जा सकता है? सिर्फ न्यूज़ एजेंसीज, यानी जो वृत्त संस्था है, जैसे पीटीआई है, यूएनआई है, एएनआई है, इस तरह की न्यूज़ एजेंसीज के जो प्रतिनिधि है वो जा सकते हैं। या दिल्ली में जो बड़े बड़े अखबार हैं जिनको सो कॉल्ड, जिनको ये कहा जाता है कि नेशनल पेपर्स हैं, उनका सर्कुलेशन मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर मेरा सकाल का हो या मलयालम मनोरमा का हो या दिल्ली थांती का अगर मैं सर्कुलेशन बताऊं तो ये जो सो कॉल्ड नेशनल प्रेस है उनसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों को संसद में प्रवेश है। और जिसको हम भाषिक या रीजनल मीडिया कहते हैं, उनको एक रोटेशनल एक तरीके से उनको संसद में अधिवेशन के दौरान प्रवेश दिया जाता है और उसके लिए लॉट्स निकाले जाते हैं और लॉट्स डाल के फिर अच्छा सकाल के फिर आप 2 दिन आ सकते हैं, फिर मलयालम मनोरमा है तो आप 3 दिन आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है एक तरह से जो सूचना, इंफॉर्मेशन, उसका जो एक्सेस है उसको इस सरकार ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये जो नया पार्लियामेंट बना है, पता नहीं आप कितने लोगों ने उसको विज़िट किया है। मैंने तो नहीं किया क्योंकि मैंने तय किया था कि इस नए पार्लियामेंट में मैं जाऊंगा नहीं, और जब कोरोना की शुरुआत हुई और लॉकडाउन हुआ उसके बाद मैंने पार्लियामेंट में कदम नहीं रखा है। लेकिन नए पार्लियामेंट के बारे में अगर आपको बताऊं तो नए पार्लियामेंट में इस तरह का इंतज़ाम है कि प्रेस यानी मीडिया और जो एमपीज़ और जो लोक प्रतिनिधि है वो एक दूसरे को मिलने के लिए उन्होंने कोई गुंजाइश ही रखी नहीं है। यानी पुराने जो संसद भवन है उसमें एमपीज़ ऊपर आते थे, जो प्रेस के लोग होते थे उनके साथ मिलजुल के बात होती थी, लेकिन अब इस तरह से उसकी रचना की गई है और वो किसकी कल्पना है ये आप सब लोग जानते हैं। तो इस तरह से बनाया है कि जिसमें मीडिया और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस संविधान में है, लेकिन वास्तव में उसकी क्या स्थिति है ये उसके मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ, निष्कर्ष आप निकालिए। बहुत सारे उदाहरण हैं पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से आक्रमण हो रहा है, उनके अधिकारों के ऊपर, उनका जो इंडिपेंडेंस है कि जिस तरह से वो इवेंट्स को कवर करना चाहते हैं उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है
एक केरल के जर्नलिस्ट थे सिद्दीकी कप्पन, जो उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ था, बलात्कार हुआ था, उस गैंगरेप हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी। और ये लड़का कप्पन हाथरस जा रहा था वो इवेंट कवर करने के लिए। अब बहुत सारे लोग उसको कवर करने के लिए जा रहे थे। वो जिस कार किसी की उसने लिफ्ट ली, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि रीजनल प्रेस या रीजनल मीडिया जो होता है उनके रिसोर्सेज बहुत सीमित होते हैं, और इसीलिए ये कप्पन सिद्दीकी ने किसी के साथ टाई अप किया था कि अगर आपका डेलीगेशन जा रहा है हाथरस किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो आई जस्ट वांट टू अकम्पनी यू so that I can save some money of my organization. So this poor chap was traveling in that car, और यूपी की पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट किया, इन सबको पकड़ लिया, इसके ऊपर UAPA लगा दिया, और यानी कुछ नहीं, एक इंसिडेंट, एक इवेंट कवर करने के लिए जाने वाले जर्नलिस्ट के ऊपर UAPA लगा दिया। आज भी वो केस चालू है। कप्पन सिद्दीकी के लिए हमने मोर्चे निकाले, डेमोन्स्ट्रेशन किए, 1, 2, 3 तो मैंने खुद लीड किए। लेकिन दूसरी बात जो हमारे लिए, हमारे जैसे लोग जो थोड़ा सा यूनियन के इसमें काम करते हैं, हमारी फ्रेटर्निटी के, दुख इस बात का होता है कि जब ये कप्पन सिद्दीकी का जब ये मामला हुआ और जब हमने डेमो किया और एक प्रोसेशन निकाला, उसमें सिर्फ केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के लोग थे और नॉन केरलाइट सिर्फ आनंद बगाइतकर थे। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट हो जाइए, लेकिन होता नहीं है। इसलिए कभी कभी हमारे कम्युनिटी, हमारी जो फ्रैटर्निटी है जर्नलिस्टों की, उसके बारे में भी ये दुख होता है। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करता है तो उसके खिलाफ सीधे सेडिशन का केस लगा दिया जाता है इस देश में। एक छोटे से गांव में स्ट्रिंगर लड़का था, उसने यूपी में, सब लोगों को ये पता है, उसने यूपी के जो स्कूल में दोपहर के भोजन का जो होता है उसमें रोटी के साथ नमक देने का काम हो रहा था, उसका शूटिंग किया, वो रिपोर्ट किया वो इंसिडेंट, उसके ऊपर सेडिशन तो लगा ही दिया। यूपी की पुलिस जब उसके घर आई और उसकी वाइफ थी घर में, उसको बिना कुछ कहे उन्होंने सीधे उठा लिया दिल्ली के उसके घर से और उसको यूपी में लेके गए। अब सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि जब कोई एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में किसी को अरेस्ट करने के लिए जाती है तो उस स्टेट के होम डिपार्टमेंट को उन्होंने पहले इन्फॉर्म करने की आवश्यकता होती है। दिल्ली में तो यूनियन होम मिनिस्ट्री का ही राज चलता है। तो हमने पूरा पूछताछ किया कि ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूपी के पुलिस एक प्राइवेट व्हीकल में आए, दे वर नॉट इन द यूनिफॉर्म, दे वेंट टू हिज होम एंड जस्ट पिक्ड हिम अप एंड वेंट अवे। तो इसलिए इसके खिलाफ हमने काफ़ी आवाज़ उठाई। वो बेचारी, उसकी जो पत्नी थी वो हमारे पास आई। फिर हमने जहाँ बात करनी थी, पूछताछ करनी थी, हमने किया। 4-5 दिन के बाद उसको छोड़ा गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे हैं और ये घटनाएं पिछले 10 साल में काफ़ी हद तक बढ़ी है। सवाल ये है, ये घटना तो होती है और हम उसको हमारा एक प्रोफेशनल हैज़ार्ड है, उसको मान के हम चलेंगे, उसका मुकाबला भी हम करेंगे। सवाल ये है कि क्या हमारी फ्रैटर्निटी में यूनिटी है?
जब हम किसी ऐसे मुद्दे पर जब कोई डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ प्रोसेशन निकालने की बात करते हैं तो जो रिस्पांस होता है वो बहुत ही दुखद होता है। जो मैंने संसद का आपको उदाहरण दिया, संसद में ये जो लोगों को इजी एक्सेस दिया गया है, क्या उन लोगों को कभी ऐसा लगता है कि हमारे जो दूसरे मीडिया के लोग हैं उनको भी हमारे साथ यहाँ बैठना चाहिए? लेकिन नहीं। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि हमारी यूनिटी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक जगह है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ प्रेस हासिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक दूसरा बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात जो मैंने शुरू में कही कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से एडवांस हो रही है और जिसके कारण ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जिसके कारण जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी, जिसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी खड़ा है, उसके बारे में हम लोगों ने ही सोचना चाहिए। ये कोई और बाहर का आदमी आके कोई बताने वाला नहीं है, ये सब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारी क्रेडिबिलिटी रीएस्टैब्लिश करने के लिए हमने क्या करना चाहिए। मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें, शायद पता नहीं मुझे कि ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ेगा, तभी जाके हम किसी स्टेट पावर के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी राजसत्ता होती है, वो राजसत्ता मीडिया हो या इंफॉर्मेशन है, वो आपको इजीली कभी भी मिलने नहीं देती। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत हमने करनी है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिविटी को रखना है, तभी जाके हम हमारी क्रेडिबिलिटी को रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं। अन्यथा जैसे बताया कि 350 चैनल्स है, क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका इंडेक्स अगर निकालेंगे तो क्या है। और जो पैरेलल मीडिया, जो हम कहते हैं कि पैरेलल मीडिया का एक राइज होते हुए नज़र आ रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी प्रश्न चिन्हांकित हुई है। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ रुकूंगा और फिर से एक बार ऑर्गेनाइजेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया, और आप सब लोगों को भी धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much, sir. Thank you very, very much.